हेलो पब्लिक, वी विल डू लाइंस के ऊपर प्रॉब्लम्स। लाइंस आपको सब मालूम है, हम लोग इजी इजी प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द पोर्शन ऑफ द लाइन x plus y is equal to 5 which is intercepted between the coordinate axis on the side of this line away from the origin। तो ये आपका स्क्वायर बन गया है। we want to find what the equation of the diagonals। चलिए, where it cuts x axis y equal to 0, where it cuts y axis x is equal to 0। आपको चाहिए diagonals के equation, तो this is a line which is parallel to what x axis, and equation of a line parallel to x axis is how much? Parallel to x axis is y इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5। द अदर डायगोनल इज व्हाट? पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5 कॉमा 0। देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5। सो दोनों डायगोनल्स का इक्वेशन मिल गया, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। चिंदी प्रॉब्लम। Next problem, the point minus 4, 5 is the vertex of a square and one of its diagonal is 7x minus y plus 8 equal to 0. Find the equation of the other diagonal। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, तो आपको BD का इक्वेशन दिया है, आपको AC का इक्वेशन फाइंड करना है। AC इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है हमको? पॉइंट एंड स्लोप। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ BD? Slope of BD, equation of a line is given, slope is how much? Minus a upon b, therefore it will become how much? 7. What is AC? AC is perpendicular to BD, so what will be slope of AC? Slope of AC will be इसका reciprocal with the opposite sign, तो वो हो जाएगा -1/7। आपको slope मालूम, point मालूम, using slope point form what will be equation of what? Equation of AC is, what is slope point form? Y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो 7y minus 35, this is equal to minus x minus 4, तो x plus 7y minus 31 is equal to 0। टिंग टिंग टिंग। ठीक है। नो प्लीज रिमेंबर, जब भी लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं, ये एक लाइन BC BD का इक्वेशन ये है, तो AC का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x plus 7y plus k equal to 0। Interchange the coefficients of x and y, change the sign of what? xy term, x का टर्म और y का टर्म। Interchange coefficients of x and y एंड चेंज द साइन ऑफ आइदर x और y। तो ये आपको मिल गया AC का इक्वेशन। ये पॉइंट इसके ऊपर है, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना बड़ा है तो बेहतर है, हमेशा नहीं रहता है, हमेशा CET में छोटा छोटा करने का है। AC क्या है? इसको परपेंडिकुलर है BD को। BD का इक्वेशन 7x माइनस y है, तो AC का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x प्लस 7y प्लस कॉन्स्टेंट। दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, इट विल सेटिस्फाई करके आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। टिंग टिंग टिंग। Next please, if the points 1 3 and 5 1 are two opposite vertices of a rectangle and other two vertices lies on this line, we want to find what? The value of C। Now please remember, सब में parallelogram, rectangle, square, rhombus, diagonals what? Bisect each other। डायगोनल्स व्हाट? ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये जो पॉइंट M इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ M मिलेगा। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। वेयर इज पॉइंट M? पॉइंट M इज ऑन द लाइन y इक्वल टू हाउ मच? 2x प्लस c। तो जो जिसके ऊपर लाई करता है उसको वो क्या करता है? सेटिस्फाइड। 2 इज इक्वल टू 6 प्लस c, तो c इज इक्वल टू -4। टिंग टिंग टिंग। If the sum of the reciprocals of the intercepts made by the line on the coordinate axis is 2, then the line passes through the fixed point whose coordinates are। ये मेरा इंपॉर्टेंट है, मेरे को फेवरेट है मेरा, लेकिन कभी नहीं आया, ये भी आपको मालूम है। Now let the equation of the line be,
इक्वेशन ऑफ द लाइन बी, जब भी इंटरसेप्ट दिया रहेगा आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, where what is a is the x intercept and b is what, y intercept. A is x intercept and b is what, y intercept. What is given? Reciprocal of the sum of the intercept is equal to 2. So 1 upon 2a plus 1 upon 2b is equal to 1. 1 upon 2 upon a plus 1 upon 2 upon b equal to 1. This shows that what? This shows that point half comma half lie on the line x upon a plus y upon b equal to 1. देखना भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. यहाँ क्या मिला हमको, हाफ अपॉन ए प्लस हाफ अपॉन बी इक्वल टू 1 मीन्स हाफ सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. मतलब दिस लाइन पासेस थ्रू व्हाट, फिक्स्ड पॉइंट हाफ कॉमा हाफ. दिस लाइन पासेस थ्रू व्हाट, फिक्स्ड पॉइंट हाफ कॉमा हाफ. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. Equation of the line passing through 1 comma 2 and making equal intercepts on the coordinate axis. जब भी intercept रहेगा, let the equation of the line be x upon a plus y upon b is equal to 1. चिंदी problem क्या दिया है, a is equal to b, so x plus y is equal to a. This point is on this line, therefore it will satisfy. Point 1 comma 2 is on the line, x plus y is equal to a, therefore 1 plus 2 is equal to a, therefore a is equal to 3. Therefore what is equation of the line? Equation of the line is x plus y is equal to 3. Chindi problems, ting ting ting. Problem number 6. Equation of the line passing through the origin and bisects the portion of the line timber intercepted between the coordinate axis. आपको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन में से पास होता है and which is bisected where, between the coordinate axis, between the portion of the line intercepted between the कोऑर्डिनेट एक्सिस. अगेन चिंदी प्रॉब्लम, ए किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 लिया. व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, it will be 4 comma 0. What will be coordinates of b, 0 comma 3. What is m? M is midpoint of ab, so what will be coordinates of m by midpoint formula, 2 comma 3 by 2. Origin का coordinates 0 0, so what will be slope of om? Slope of om will be difference between y coordinate upon difference between x coordinate. So this will become how much, 3 upon 4, correct? This will be how much, 3 upon 4, difference between y coordinate upon difference between x coordinate. तो ये कितना हो जाएगा, slope. Therefore what will be equation of the line? Equation of the line is y is equal to mx, that is 3x minus 4y is equal to 0. 3x minus 4y is equal to how much, 0. झेपा क्या बोला है, equation of the line passing through the origin and bisecting the portion of this line between the coordinate axis. 3x plus 4y equal to 12. Where it cut x axis, put y equal to 0. Where it cut y axis, put x is equal to 0. midpoint formula से ये आ जाएगा 2 comma 3 by 2, तो इसका slope आ जाएगा 3 by 4. Equation is always of the form what, y equal to mx. Ting 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 ting. Equation of the line having x intercept 5 by 3 and perpendicular to the line joining timber. x intercept 5 by 3 है, मतलब the line is passing through what, the line is passing through, x intercept 5 by 3 है, मतलब ये आ जाएगा 5 by 3 comma 0. ये कितना आ जाएगा, 5 by 3 comma 0. What is slope of the given line? Difference between y coordinate upon difference between x coordinate, तो ये कितना आ जाएगा, -5 upon 6. So what will be slope of the required line? वो perpendicular है, perpendicular है तो क्या, reciprocal with the
ऑपोजिट साइन, रेसिप्रोकल विद द ऑपोजिट साइन। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 6/5 इंटू एक्स माइनस 5/3। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6x/5 माइनस ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 2 से अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 6x 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5y माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। टिंग टिंग टिंग। Length of the perpendicular from the origin on line L is 3. ये length is 3 and if this line makes an angle of 240 degrees with the x axis, find the equation of the line. ये easy है if you know normal form of the line. What is normal form of a line? Normal form of a line is x cos alpha plus y sin alpha, this is equal to p. So this will be x cos 240 plus y sin 240, this is equal to p कितना है आपका 3। cos 240 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन 60 180 प्लस, और ये आएगा माइनस y cos 60। cos क्या ये चेंज नहीं होएगा, 180 रहेगा तो नो चेंज, बराबर है ना। 180 मीन्स व्हाट, नो चेंज। cos will remain cos, तो दिस विल बी माइनस x cos 60 माइनस y sin 60, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3। हाउ मच इज cos 60, 1/2। हाउ मच इज sin 60, √3/2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस √3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यू मस्ट नो नॉर्मल फॉर्म। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, p। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 5x माइनस 12y प्लस 39 इक्वल टू 0। एक दिया है और दूसरा भी दिया है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। कोई भी दो पैरेलल साइड्स दिए हैं, आपको पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो आपको इसमें क्या मालूम चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 कितना है आपका 78, c2 कितना है आपका 39, होल अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, करेक्ट। 39 और 39 हो जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 39/13, ये हो जाएगा 3। ये मिल गया आपको साइड एरिया इज हाउ मच, साइड स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें आपने कवर कर लिया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज हाउ मच, c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के आपको सब मिल जाएगा, सब फॉर्मूले अपन कवर कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंक्लिनेशन 120 डिग्रीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। भैया ये जो इंक्लिनेशन है, अभी आप ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या दिया है आपको, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये डिस्टेंस उन्होंने दिया है कितना 3, और ये इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दिया है। इसके प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स के पहले उन्होंने ये परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन दिया था, तो हम लोग ने यूज क्या किया था, हम लोग ने यूज किया था नॉर्मल फॉर्म। अभी इसमें आप लोग नॉर्मल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये है 90, ये है 120, तो इसको आप ले सकते हो हाउ मच 30 डिग्रीज, एक मेथड। दूसरा मेथड, what is slope of the line, slope is equal to tan 120, tan 120 will be tan minus tan 60 which will be minus √3। so let the equation of line be, आपको क्या पता है, slope पता है, तो let the equation of the line be y equal to mx plus c, √3x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्या बोला है उन्होंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3, सो यूज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला।
व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ. फ्रॉम द ओरिजिन इट विल बी व्हाट minus c upon root of 3 plus 1. Root 3 square is 3, 1 square is 1. So this will become how much? 3 plus 1 4, that will become 2. तो c will be what? Plus or minus 6. ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो what will be equation of the line? Equation of the line is root 3x plus y plus or minus 6 is equal to 0. Root 3x plus y plus or minus 6 is equal to 0. We have used what? Perpendicular distance formula. Next problem, find the equation of the line perpendicular to this at a distance of 2 root 10 from the point 1 comma minus 1. Now perpendicular है तो let the equation of line be. मैंने आपको बोला था आपको क्या करना है, ये इंटरचेंज करना है और साइन चेंज करना है. तो क्या मिलेगा आपको? x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0. x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर है. अगर इफ इट इज पैरेलल देन द इक्वेशन विल बी 3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. पैरेलल के लिए क्या रहता है? स्लोप सेम. परपेंडिकुलर के लिए इंटरचेंज, चेंज द साइन. Now what is given? Perpendicular distance from 2 root 10. So by perpendicular distance formula, what is perpendicular distance formula? It is 2 root 10. This is equal to jikadapan x tikada 1, jikadapan y tikada minus 1 plus k whole upon root of 1 square plus 3 square. Correct? रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9. 9 प्लस 1 हो जाएगा ये रूट 10. रूट 10 रूट 10 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20. दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस के. अगर आपको याद रहेगा तो मॉड्यूलस निकालते तो के माइनस 2 इज इक्वल टू 20 और के माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 20. तो के इज इक्वल टू वॉट? 22 और k is equal to what? Minus 18. k is equal to 22 और k is equal to minus 18. This we are going to substitute where? इसमें. Therefore what are the equations of the lines? Equations are what? x plus 3y plus 22 equal to 0 and x plus 3y minus 18 is equal to 0. Again we have used what? We have used perpendicular distance formula. Next problem please. If this line passes through the intersection of these two lines, find k. इसका मीनिंग क्या है? तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब लाइंस आर व्हाट? कंकरेंट. और लाइंस आर व्हाट? कंसिस्टेंट. एंड व्हेन लाइंस आर कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ k 4 6 2 3 4 3 4 5, this is equal to 0. प्लस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? k. याद रखिए कांस्टेंट टर्म सब एक साइड में चाहिए. ओके, आइदर ऑन फुल ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. प्लीज सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Next problem please. The coordinates of the foot of the perpendicular from the point 1 comma 2 on the line x minus 3y plus 7 equal to 0. ये पॉइंट फाइंड करना है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो ये लाइन का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे और ये दोनों को सॉल्व करेंगे. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ the perpendicular line? Let the equation of the perpendicular line be, मैंने बोला परपेंडिकुलर तो इनको दोनों को क्या करेंगे हम लोग? इंटरचेंज. कितना आता है? 3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर रहेगा तो इंटरचेंज, चेंज द साइन. This point is on this line, it will satisfy 3 plus 2 plus k is equal to 0. तो आपको k कितना मिल गया? -5. तो इक्वेशन क्या मिल गया आपको? 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 3y
-15 इज इक्वल टू 0। जब आप ऐड करते हो तो 10x इज इक्वल टू 8, तो x आपको कितना मिल गया 4/5। ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। टिंग 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 किधर भी डाल सकते हो आप। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर है इसलिए अगेन व्हाट आई हैव डन, आई हैव इंटरचेंज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y और ये साइन को चेंज कर दिया है, हमको मिल गया है आंसर। If the perpendicular distance of the line this from the origin is p upon root 2, then a square plus a square p square b square are in what? Again use what? Perpendicular distance formula. What is perpendicular distance formula? From the origin. So p upon root 2 will be how much? Constant term upon coefficient of x square plus coefficient of y square. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स किया तो पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1 ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लिया, 2/पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। देयरफॉर यू कैन से ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर व्हाट इन एचपी। मालूम रहेगा तो आपको एपी जीपी एंड एचपी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if this line represents what family of lines, then the coordinates of the fixed point is what? इसको हम लोग लिखते हैं, एक्सपांड करते हैं 3x माइनस 2kx माइनस 2y माइनस ky माइनस 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। वी विल टेक दिस थ्री टर्म्स एक साथ, हम साथ साथ है 3x माइनस ky, सॉरी 3x माइनस 2y 3x minus 2y minus 5 plus k common, this will become minus 2k minus y plus 1, this is equal to 0. This equation is of the form what? U plus kv equal to 0, and U plus kv equal to 0 represents a line passing through what? Passing through point of intersection of u equal to 0 and v equal to 0. That is 3x minus 2y equal to 5, and you can write this as what? ये 2x है बच्चा, this is what? 2x. इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x plus y is equal to 1. Solve these two equations simultaneously, you will get what? The point of इंटरसेक्शन, बिकॉज फैमिली ऑफ लाइन्स का मीनिंग क्या है? u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देन u प्लस kv इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7, तो आपका x हो जाएगा 1। अगर x अपने 1 डाल दिया तो ये इधर आ जाएगा, तो आपका y कितना आ जाएगा? -1। सो इट ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट 1, -1। Next problem, same type. If u is given to be timber and v is given to be timber, find the point of intersection of the lines. देखिए ये इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? u plus 107/21 v equal to 0, u minus 33/5v is equal to 0. This is of the form u plus k1v equal to 0. This is of the form u plus k2v equal to 0. This is u equal to 0, this is v equal to 0, this will be u plus k1v equal to 0, this will be what? U plus k2v equal to 0. So point of intersection of these two lines means point of intersection of what? U equal to 0 and v equal to 0, म्हणजेच x minus y equal to 6 and 2x minus y is equal to 12. इनको अगर आप सॉल्व करते हो, अगर मैंने किया इधर माइनस प्लस माइनस तो ये कितना मिलेगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू -6, मतलब x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया तो y इज इक्वल टू 0. तो द लाइन्स आर ऑलवेज पास थ्रू व्हाट? द फिक्स्ड पॉइंट 6,
0. J' क्या? U plus KV equal to 0 always represents a line passing through point of intersection of U equal to 0 and V equal to 0. If A, B, C are what in AP? AP का मीनिंग क्या है? मतलब A plus C is equal to 2B, that is A minus 2B plus C is equal to 0. Always pass through the fixed point. Then you can see here, इसको हम लिख सकते हैं A into 1 plus B into minus 2 plus C equal to 0. This shows that what? Point 1 comma minus 2 satisfies the equation कौन सा वाला? ax plus by plus c equal to 0. Therefore, it always pass through the fixed point 1 comma minus 2. It will always pass through the fixed point 1 comma minus 2. Next problem, if ABC are in AP, म्हणजेच 2B is equal to A plus C. AXB are in GP, मतलब x square is equal to AB. BYC are in GP, मतलब y square is equal to BC. Then point x comma y lies on. ये दोनों इक्वेशन को अगर मैंने ऐड कर दिया, मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉमन ए प्लस सी. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी कितना है? 2b. तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? ऑलवेज अ सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ सर्कल. एंड उस सेंटर इज ऑलवेज व्हाट? 0 0. और रेडियस कितना है? 2b स्क्वायर. That is wrong. Radius will be what? b root 2. क्योंकि रेडियस स्क्वायर रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2b द होल स्क्वायर. तो सेंटर इज 0 0, रेडियस इज b root 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम. If the triangle has its orthocenter at 1 1, circumcenter at 3 upon 2, 3 upon 4, find its सेंट्रॉइड. अभी ये आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये है आपका ऑर्थो सेंटर, ये है आपका सरकम सेंटर. सेंट्रॉइड डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1. ऑर्थो सेंटर centroid always divides. G divides OC in the ratio 2:1. In any triangle, G divides OC in the ratio 2:1. So by section formula क्या आ जाएगा? 2 into 3/2 plus 1 into 1 upon 2 plus 1, and y coordinate 2 into 3/4 plus 1 into 1 whole upon 2 plus 1. टिंग 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 2 will get cancel. 3 plus 1 4, तो ये हो जाएगा 4 upon 3. ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो यहाँ बचेगा 2. 2 into 1 will be 2. 3 plus 2 will be 5. 5 upon 2 upon 3. 5 upon 2 upon 3. So that will become 5 upon 6. याद रखिए क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है आपकी सेंट्रॉइड डिवाइड्स the line segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1. सब प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. रिलेशन बिटवीन ऑर्थोसेंटर, सरकमसेंटर एंड सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सरकमसेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1. Next problem please. If the vertices of the triangle are timber 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 timber, ये है origin आपका 0 0, ये है x एक्सिस पे और ये है y एक्सिस पे. आपको ऑर्थो सेंटर पूछा है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल. याद रखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द प्रॉपर्टी? Okay, the orthocenter
is what? The vertex. Orthocenter is what? The vertex where the triangle is right angle. Orthocenter is the vertex where the triangle is what? Right angled. ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर. एंड व्हाट इज अ सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर इज नथिंग बट व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse. Okay, orthocenter where the triangle is right angle and circumcenter is what? Midpoint of the hypotenuse. तो ये कितना आ जाएगा? 3/2. करेक्ट. और 2. दिस आर व्हाट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर. और सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर मालूम है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? सेंट्रॉइड, because centroid divides the join of orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. This property is only for what? A right angled triangle. In a right angled triangle, vertex where the triangle is right angled उसको हम लोग क्या बोलते हैं? orthocenter. और circumcenter is nothing but what? The midpoint of the hypotenuse. And centroid divides the join of orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. Next problem, equation of the line making an angle of 15 degrees with the positive x-axis. चमाइला 15 डिग्रीज दे दिया उन्होंने, मतलब आपका स्लोप कितना हो गया है? tan 15 डिग्रीज. करेक्ट. और आपका y इंटरसेप्ट दिया है 4 ऑन द नेगेटिव x-axis, मतलब उन्होंने c कितना दिया है? -4. tan 15 का वैल्यू आपको मालूम चाहिए. अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15? इट इज √3 minus 1 upon 2 √2. What is the value of cos 15? It is √3 plus 1 upon 2 √2. So tan 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड कर देंगे तो √3 minus 1 upon √3 plus 1. रैशनलाइज करेंगे √3 minus 1 upon √3 minus 1. ऊपर कितना आ जाएगा? 3 plus 1 4, 4 minus 2 √3 upon 3 minus 1 2, मतलब आपका स्लोप आ जाएगा 2 minus √3. ये डायरेक्टली वैल्यू मालूम है आपको तो अच्छी बात है. व्हाट इज tan 15? 2 minus √3. इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू व्हाट? mx plus c. तो y इज इक्वल टू 2 minus √3x minus 4. तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 minus √3x minus y minus 4 is equal to how much? 0. 2 minus √3x minus y minus 4 is equal to 0. झेपा क्या? आपको वैल्यू मालूम चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15? 2 minus √3. The value of tan 15 is how much? 2 minus √3. sin 15 √3 minus 1 upon 2 √2. cos 15 √3 plus 1 upon 2 √2. ट्रिग्नोमेट्री के टाइम सिखाया था. tan 22.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ मच? √2 minus 1. अगर cot 22.5 बोला तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रैशनलाइज किया तो क्या मिल जाएगा आपको? √2 plus 1. If a plus b plus c is equal to what? 0, then this line will pass through the fixed point. fixed point बोला तो आपको वही लेना का है u plus kv equal to 0 के फॉर्म में. b कितना आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ a plus c. ये अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? 3ax. b कितना है? माइनस ऑफ a plus c into y plus 2c is equal to 0. तो 3ax minus ay minus cy plus 2c is equal to 0. इसमें से a कॉमन, दिस विल बिकम 3x minus y plus c कॉमन minus y plus 2 is equal to 0. 3x minus y plus c upon a into minus y plus 2 is equal to what?
0. Now this is of the form u plus kv is equal to 0. Shining mara hai, it always pass through point of intersection of 3x minus y equal to 0 and minus y plus 2 equal to 0. मतलब आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, y is 2, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2/3. So this line always pass through the fixed point 2/3, 2. याद रखिए फिक्स्ड पॉइंट बोला तो यू ऑलवेज कन्वर्ट द इक्वेशन इन द फॉर्म व्हाट u प्लस के वी इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, यू विल गेट व्हाट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये ऐसा ही, ये फॉर्मूला एक भी बार यूज नहीं किया था इसलिए अभी यूज करना हूं. फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स टिम्बर 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 एंड द लाइन जॉइनिंग टिम्बर टिम्बर टिम्बर. What is slope of x plus y equal to 3? Slope of the line x plus y minus 3 equal to 0 is how much? Minus 1. And the slope of the other line is how much? Difference between y coordinate upon difference between x coordinate. 4 minus 1 is 3 और ये हो जाएगा minus 4. इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव लेना है. tan थीटा इज हाउ मच? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. tan थीटा इज m1 विच इज माइनस 1 प्लस 3/4 होल अपॉन 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3/4. तो ऊपर हो जाएगा -4 + 3 हो जाएगा हाउ मच 1, तो 1/4 और नीचे हो जाएगा 7/4. सो दिस विल बिकम हाउ मच? tan थीटा दिस इज इक्वल टू 1/7. तो थीटा इज हाउ मच? tan इनवर्स 1/7. थीटा इज हाउ मच? tan इनवर्स 1/7. ये फॉर्मूला यूज कर दिया है. एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. If PS is the median of the triangle with vertices timber timber timber, find the equation of the line passing through 1 minus 1 and parallel to what? PS. PS को एक लाइन पैरेलल है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 कॉमा -1. मतलब आपको सिर्फ इसका क्या फाइंड करना है? स्लोप. उसके लिए आपको PS का स्लोप फाइंड करना है. S इज मिड पॉइंट ऑफ QR. So what will be coordinates of S? Coordinates of S will be m1 plus m2 upon 2, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Correct? देखना भाई क्या रो रहा है. 7 plus 6 13/2 minus 1 plus 3 2/2 which is what? 1. So what will be slope of PS? Slope of PS will be difference between y coordinate upon difference between x coordinate. 2 minus 1 आपका 1 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1, ये 2 ऊपर चला गया, 2 2 ज़ा 4, 4 minus 13 will be how much? -9. तो PS का स्लोप 2/9, तो ये लाइन का स्लोप भी 2/9, therefore -2/9, sorry. So what will be the equation? The equation will be y minus y1. This is m into x minus x1. ओके तो ये कितना हो जाएगा? 9 को उधर मल्टीप्लाई करते -2x को उधर लिया तो +2x प्लस 9y हो गया. 2x प्लस 9y हो गया. ये हो गया +2 और ये 9 minus 2 7. 2x plus 9y plus 7 equal to 0. When lines are parallel, slopes are equal. When lines are perpendicular, उल्टा पुल्टा with the opposite sign. बोल बोल के मैं थक गया हूँ. Find the equation of the line parallel to what? X axis. ठीक है. Find the equation of the line parallel to x axis at a distance of what? 4 units from the point -2, 3. अगर आपने -2, 3 सपोज हम लोग ने ये एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे -2, 3. ओके आपको क्या बोला है? लाइन का इक्वेशन फाइंड करो. ये पॉइंट से ये पॉइंट के एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स है. 4 यूनिट्स अगर मैंने सपोज ऊपर ले लिया तो ये एक लाइन ऐसी हो जाएगी और एक लाइन नीचे ले लिया तो एक लाइन ऐसी हो जाएगी. ठीक है ना? यहाँ से जो डिस्टेंस है देखिए आप, ये एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस कितना है? 4. इट कैन बी अपवर्ड्स और इट कैन बी डाउनवर्ड्स.
ये लाइन का इक्वेशन क्या है? दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस. इट्स इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू 3, करेक्ट? 4 डिस्टेंस ऊपर गया तो ये लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 7. 4 डिस्टेंस नीचे गया, ये लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? y इक्वल टू -1. तो इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -1. ये पेयर ऑफ लाइंस में भी था 12th का सिलेबस में. व्हाट विल बी द कंबाइन इक्वेशन? y स्क्वायर इक्वल टू 7 -7. ये रॉन्ग है, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमेशा राइट हैंड साइड इक्वल टू आप क्या लेते हो? 0. इसको हम लिखते हो y माइनस 7 इक्वल टू 0. इसको हम लिखते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. याद रखिए, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड शुड बी ऑलवेज व्हाट? 0. देन ओनली वी मल्टीप्लाई. इफ यू मल्टीप्लाई डायरेक्टली यू विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू -7. वो नहीं हो सकता है. याद रखिए, कंबाइन इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड हमेशा क्या चाहिए? 0. A line which is parallel to x axis, the equation is what? y equal to constant. ये लाइन है y equal to 3. 4 ऊपर गया y equal to 7. 4 नीचे आ गया y equal to -1. When the line is parallel to y axis, its equation will be what? x equal to constant. In this case अगर ये पॉइंट से पास हो रहा है, अगर ये 2 रहेगा, इक्वेशन will be x equal to 2. ये लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? x is equal to -2 because x coordinate is what? कांस्टेंट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइंस. नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.